So hello everyone, welcome back to the Business Studies lecture of your Consumer Protection Act. So today what we are going to learn is about consumer rights. By now we have completed what is consumer, who can file a complaint, where can we file a complaint. We saw some videos in the way the consumer is getting exploited. Now today we are going to learn about what are the consumer rights. You have already studied these rights when you were in standard 6th and you were in standard 10th. You got the basics of this. Same thing is over there. There is nothing new over here. Your rights are same. Rights have not changed. So this is what we are going to learn today. We are having 6 different kinds of right being a consumer to protect ourselves from the exploitation by the sellers or service provider. So this is what we are going to learn today. The first right is right to safety, then right to be informed, then right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. So most of you will be knowing all these rights, but yet we will just refer it up a bit. We'll learn it in a better way. We'll try to understand it with the help of example and how we are getting benefit of that rights. So first is right to safety. So you know, like safety, like why does a person consume something branded? Why do we buy a branded product? Why do we buy a quality product even if it's a bit costly than the normal product? We go for a qualitative product, bit costly or branded product because we are careful about our safety. We want that we stay safe and secure. When I tell you to buy some kind of, when you go to some roadside hotel and they ask you for water, you'll say normal water or this bottled water. Definitely bottled water. Because you know that on a roadside you don't know what kind of water it will be, who all uses it, how it is used. So we don't want to take risk and we think of our rights towards our safety. But do we think this thing at each and every product or each and every time we buy something? No, we don't think about this every time. And that's why we should have a right to safety, because if we forgot that our safety is getting neglected, it is responsibility of a seller being a part of a society that if we are not able to recognize that whether our safety is in danger or not, at least seller should take care that it's a matter of life and we should take care of a buyer by giving them safe products. So, but yet, you know, like seller are always focused about more money and the profit oriented thing. So they are going to sell the thing which is more beneficial to them. And that's why there are so many incidents happening daily all over the world where the right of the consumer, the right to safety is getting violated because consumer is not advised or not said by the seller that by using this product they are going to be in a danger, because this product is cheap quality. The biggest example is a Chinese product. Like we know, like China is one of the biggest producers of each and every kind of goods in the world. But China does produce only the bad quality of goods? No, they have a very good A-grade goods market where they produce the best of the best quality product. Just see one thing, like this iPhone, Apple iPhone is manufactured in China as well, and this regular Chinese phones which does get, you know, depleted or which gets damaged in 2 to 3 days or many times in 6 months, they are also manufactured in China. China is having 2 different kinds of market. One is of A grade quality and one is of lower quality. But while you buy that lower quality product, do they ever say you that no, this product is harmful to you? That MI phone suddenly started getting burst out, they were getting blasted, their battery got heat up and they used to burst. But did MI ever mention on the box that our product is having this kind of batteries that it can burst in your hands and it can cause a damage to your body? No, they don't. That's why our rights got violated. So Consumer Protection or COPRA or Consumer Forum has decided that a consumer should get rights to safety if seller is not giving intimation to the consumer that this product is dangerous and consumer uses it and his safety gets violated or he suffers any kind of damage, then seller will have to compensate them because seller didn't give the actual information regarding the safety of product. So that's why Consumer Forum has said to consumers that even consumers should be aware about their own. Like मैं आपकी responsibility लूँ, उससे better आप खुद आपकी responsibility लो, तो you will be more safe. But yet, if you are not having that much capability, if you are not that much aware about your safety, हमने आपको एक guidance दिया being a Consumer Forum that please buy product with ISI mark, especially electrical appliances. Whether you talk about this refrigerator, televisions, microwave ovens, helmets, these all should have ISI mark over it. ISI mark, if the product has, it means it has gone through each and every necessary and possible safety standards.
So if you are using ISI mark product, then you have a kind of assurance that your safety is safe. You are not going to face any kind of trouble or any kind of danger while using that product if you are using ISI approved product. Yeah, many a times I do understand that even seller are not having intentions to make a bad quality product, and even ISI mark product can also cause you some damage, but such kind of danger is very rare because they have went through so many quality checks. If you refer some kind of product, no, at the back of the product there is a sticker saying QC7. It means that that product has underwent 7 kinds of different quality checks and it passed all the 7 tests and it is safe to use it. So if a product is having ISI mark, you can have one thing in your mind that 99.99% this product is very safe for us to use it. So right to safety, अगर फिर भी आपका right violate हो गया, you can go to company, you can go to consumer forum. If company don't listen to you, पहले आपको company के पास ही जाना चाहिए, because right now so many good companies are there who are genuinely concerned about their product and their consumers, and वो लोग आपको तुरंत ही आपके डैमेज के लिए जितना पॉसिबल हो सके उतना हेल्प कर सकते हैं. But if they are not paying attention towards your complaint, you can at the end definitely go to the consumer forum and file a complaint regarding a seller's behavior towards your safety and the way your safety got violated, and they will definitely do the good for you. So first of all was right to safety, then comes right to be informed. Every consumer has a right कि उनको अपने यूज करने वाले प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसा होगा विच विल इन्फ्लुएंस देयर बाइंग पावर और बाइंग डिसीजन. एक प्रोडक्ट का प्राइस आपको नहीं मालूम होगा, आप सीधा बाई करने के लिए लेके जाके काउंटर पे दे दोगे एंड आपका बिल लंबा चौड़ा आएगा. तो अगर आपको प्राइस पहले ही मालूम होता तो हो सकता है यू वुड हैव नॉट बॉट इट, बिकॉज आपको लगता है दिस प्रोडक्ट इज नॉट दैट वैल्यूएबल कि इसके लिए इतना पैसे स्पेंड करूं. सो पहले तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होने चाहिए. यू शुड नो द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कि कितना अच्छा है. तो वो FSSAI फूड मार्क्स आते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक में अंदर ये ISI मार्क्स आते हैं, या फिर लाइसेंस नंबर्स आते हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, फिर बैच नंबर्स आते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए अभी तो वो सारे अप्लायंसेस पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग्स आ गए हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितने यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करता है ये प्रोडक्ट. तो ये सारी डिटेल्स, फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कितने रुपए का प्रोडक्ट है, क्योंकि हो सकता है एक चीज, एक मोबाइल फोन 10,000 का है, एक मोबाइल फोन 1 लाख रुपए का है. यू डोंट नो व्हाट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. उस पे लिखा होगा तो यू विल कम टू नो एंड यू विल डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट. तो प्राइस पता होना चाहिए. क्वांटिटी, या ऑब्वियसली बिकॉज यू नीड टू कंपेयर. फॉर एग्जांपल एक पोटैटो चिप से बालाजी का, एक पोटैटो चिप से लेस का, उनके पीछे ग्राम्स और प्राइस लिखे होंगे, तो यू विल कम टू नो दैट ओके ये इतने पैसे में इतने ग्राम्स दे रहा है, ये इतने पैसे में इतने ग्राम्स दे रहा है, तो मुझे तो ज्यादा वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो आई विल गो फॉर बालाजी फॉर एग्जांपल. सो आपको क्वांटिटी भी पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप 10 रुपए के अंदर 10 ग्राम की चीज लेके आओ, जबकि आपको 10 रुपए में 100 ग्राम भी मिल रहा था और वो भी अच्छी क्वालिटी का. देन कंटेंट क्या क्या होता है. मैनी टाइम्स वो एग्जांपल हमने देखा था, वेयर अ पर्सन कंज्यूम्ड दैट बॉय कंज्यूम्ड चिप्स पैकेट व्हिच वाज हैविंग अ ग्राउंडनट ऑयल एंड ही वाज एलर्जिक टू दैट ग्राउंडनट ऑयल, बट इंफॉर्मेशन वाज नॉट रिटन ऑन द पैकेट एंड दैट्स व्हाई ही वाज अनअवेयर दैट उसको प्रॉब्लम होगा. तो वो कंटेंट भी लिखा होना चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे जैन्स एंड स्वामीनारायण होते हैं, दे डोंट ईट पोटैटो, अनियन, गार्लिक एटसेट्रा, और दे डोंट ईट एनी काइंड ऑफ रूट्स. तो वो लोगों को अगर पीछे लिखा नहीं होगा कि इसमें अनियन गार्लिक है या नहीं, तो वो शायद खोल के खा लेगा. सो वो कंटेंट में क्या, फॉर एक फिर ऐसा भी होता है दैट मेनी टाइम्स यू नो दैट ग्रीन एंड रेड मार्क्स आर देयर ऑन द केक एंड पेस्ट्रीज एंड मेडिसिन्स आल्सो, कि ये पेस्ट्री है उसके अंदर एग है, बिकॉज मेनी पीपल डोंट ईट एग्स. तो वो कैसे पता चलेगा, डिटेल होगा तो ना. तो कंटेंट शुड बी रिटन ओवर देयर. मेडिकल्स और हर एक प्रोडक्ट के अंदर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कितना पुराना प्रोडक्ट है. डेट ऑफ एक्सपायरी होना चाहिए कि कब एक्सपायर होने वाला है, कहीं आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करके आपको बीमारी ना हो जाए, तो वो भी लिखा होना चाहिए. तो उसके लिए क्या है, बैक साइड ऑफ द पैक, किसी भी पैकेट के बैक साइड के ऊपर ये सारी डिटेल्स लिखी होती है, जिसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में ऐसे लेबल भी पढ़ा था, जो आगे भी लेबल होता है पीछे भी लेबल होता है. तो पूरा पैकेट के अंदर जो भी है उसके अंदर लेबलिंग इतना माइन्यूट करते हैं, प्रोडक्ट्स तो लिखते हैं, कितने ग्राम डाला है वो भी लिखते हैं, और कितना वो कंज्यूम करने पर कितना एनर्जी मिलेगा, लाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, क्या मिलेगा आपको वो भी उसके ऊपर लिखा होता है. उतना डिटेल में लिखते हैं वो लोग पैक के पीछे. एंड पैक के पीछे अभी पैक नहीं हो तो यू विल से सर पैक, तो बॉटल्स होती है ना, बॉटल्स और कैंस में क्रिम्प होता है. क्रिम्प मतलब जो ऊपर का जो राउंड नेक होता है वो राउंड नेक, और ट्यूब जैसा सपोज कोई हो, लाइक कोलगेट का ट्यूब होता है, तो उसमें पैक के पीछे नहीं, उसमें लास्ट में जो वो कड़क ऐसा, आई शो यू,
फॉर एग्जाम्पल एक कोलगेट का पैकेट है, तो उसके पीछे ऐसा कड़क लाइन जैसा होता है, लाइक दिस, तो इसे बोलते हैं क्रिम्प। तो वो क्रिम्प के ऊपर भी लिखे होती है, प्राइसेस लिखे होते हैं, वो क्रिम्प के ऊपर ही यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखे होते हैं। तो यू शुड चेक द बैक साइड ऑफ अ पैकेट, बॉटल का नेक पे भी देख सकते हो और क्रिम्प पे भी देख सकते हो, तीन में से कोई भी एक जगह पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। सो ये हो गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सो आपका ये राइट है कि आपको सारी डिटेल्स मिले, बिकॉज अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती तो शायद आप ये प्रोडक्ट नहीं लेते, बिकॉज आपको वो प्रोडक्ट की कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं पसंद है, बट आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली और आपने ले लिया एंड देन यू सफर्ड एनी काइंड ऑफ डैमेज। तो कंपनी को आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, कंपनी को आपको आपका कंप्लेन कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी गलती है। और अगर नहीं लिखा है तो कंपनी पे केस होता है कि उन्होंने ये डिटेल्स डिस्क्राइब नहीं करी थी, विच आर एक्चुअली वर्थ टेकिंग नोट, विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द बायर टू नो, बट उनको नहीं पता चला। देन राइट टू चूज, सभी का एक राइट है चूज करने का। वी शुड हैव अ राइट टू चूज द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि सेलर ने अपने को बोला नहीं मैम आपको यही लेना पड़ेगा, आपको यही लेना पड़ेगा और कोई नहीं दूंगा, यही लेके जाओ, ऐसे नहीं होता है। सेलर शुड गिव अस द वेरियस काइंड ऑफ वेराइटीज की फॉर एग्जांपल यू गो टू, हमने एग्जांपल लिया है मोबाइल्स एंड कार्स का, तो एक ही ब्रांड के कितने मोबाइल फोन्स, कितनी वेराइटीज, 500 रुपए के डिफरेंस में वेराइटीज आती है। इसका कैमरा ऐसा, इसका बैटरी ऐसा, इसका रैम ऐसा, इसका इंटरनल मेमोरी ऐसा, इसका रोम ऐसा, इसका डिस्प्ले इतना साइज का, इसका टच ऐसे टाइप का, इसका कीपैड ऐसा, इसका चार्जर ऐसा, इसका ईयरफोन ऐसा, कितनी सारी चीजें होती है। तो हर एक चीज की वैरायटी, बिकॉज सब अपनी वैरायटी के, अपनी डिमांड और चॉइस के हिसाब से शायद कोई दूसरा प्रोडक्ट चूज करना चाहे। सेम वे यू गो फॉर कार, एक ही कार के इतने मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यू गो टू बाय अ क्रेटा और यू गो टू बाय सम वेरी गुड कार्स लाइक मर्सिडीज और BMW, इवन दे हैव सो मेनी वैराइटीज, लाइक यू कैन गो फॉर अ 320, यू कैन गो फॉर 540, यू कैन गो फॉर 530, यू कैन गो फॉर 720, X1, X5, कितने मॉडल्स है, बिकॉज यू हैव अ राइट टू चूज द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन चॉइस। आपकी जरूरत, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी नीड्स, आपके सेटिस्फेक्शन, आपके वांट्स के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आपको यूज करना है वो सिलेक्ट करने का आपके पास पूरा हक है। आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि मैम आपको तो आईफोन लेके जाना ही पड़ेगा वरना मैं और कोई फोन तो आपको दूंगा ही नहीं। नो, यू कैन नॉट। सो हर एक कंज्यूमर को राइट है चूज करने का, और उसके लिए सेलर को कंपलसरी उन्हें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, बिकॉज अगर वैरायटी नहीं होगी तो फिर कंज्यूमर चूज कहां से करेगा। सो राइट टू चूज इज ऑल्सो योर राइट। अगर आपको ऐसा कभी हुआ कि आपका राइट वायोलेट हुआ और कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर, सेलर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, यू कैन डेफिनेटली लीव दैट सेलर एंड गो टू समवेयर एल्स। देन राइट टू बी हर्ड, आपका हक है कि कोई आपकी कंप्लेन को सुने। If you are having any kind of problem, if you are feeling that you are getting exploited, if you are feeling that आपके needs या wants satisfy नहीं हो रहे, if you feel that the reason for which you bought the product or bought the service वो reason आपका fulfill नहीं हो रहा है and you don't want this product, you are having a complaint for it, तो आपका right है कि आप वो बोलो, और सामने वाले का right है that he listen to you, वो आपकी कंप्लेन, आपके प्रॉब्लम को कंसिडर करे। सबसे पहले सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही शुड हियर टू यू, उसको आपकी कंप्लेंट्स, आपका प्रॉब्लम, आपका इश्यू सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो आपको कंज्यूमर फोरम के पास जाना है, उनको आपका एटलीस्ट कोई नहीं तो उनको तो सुनना और सुनना ही पड़ेगा। एंड अगर उन्होंने भी नहीं सुना तो डेफिनेटली यू कैन फाइल अ PI ऑन द नेम ऑफ द कंज्यूमर फोरम ऑल्सो। तो ये कंज्यूमर फोरम का एग्जांपल दिया है हर एक सेलर का। अभी तो अच्छी कंपनीज लाइक यू गो फॉर PNG, यू गो फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, यू गो फॉर विप्रो, यू गो फॉर दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलायंस प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ये सब लोगों ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट चालू किया है, कंज्यूमर, ये बोलते हैं ना कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। What do they do? हर एक का खुद का कस्टमर सर्विस होता है, तो वो लोग आपको सुनते हैं। आप लोग उनके ऊपर चढ़ भी जाओ ना तो भी ओके सर, सॉरी सर, गलती हो गई, हाउ वुड यू लाइक टू गेट दिस थिंग डन, हम आपका हमारा कंज्यूमर अरे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भेज देंगे, रिपेयर करने वाला भेज देंगे, आप प्लीज सॉरी फॉर दिस, ये वो लोग सुनते हैं। हम उनको गालियां देंगे तो भी वो सुनते हैं, बिकॉज हमारा राइट है कि कोई हमको सुने, हमारी प्रॉब्लम्स है। तो राइट टू बी हर्ड, तो should be allowed to, consumer should be allowed to file the complaint if not satisfied or faced problem। तो कंज्यूमर को हक है कि वो कंप्लेन फाइल करे, और जो कंप्लेन लिखने वाला है उसे उसका कंप्लेन लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अवर राइट। तो जैसे कि कई बार होता है दैट many times even this policeman they say you that 24 hours वेट करो, 48 hours वेट करो, मिल जाएगा ये वो। नो, आपने एक टाइम वेट कर लिया, 24 hours का जो नॉर्म्स है कि उसमें मिल गया, नहीं मिला तो he has to file a complaint। सेम वे कंज्यूमर फोरम का भी राइट है कि उसको
कंज्यूमर फोरम का भी ड्यूटी है कि उन लोगों को भी हमारा कंप्लेंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव राइट टू बी हर्ड। आपको हमें सुनना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों का प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, वी हैव पेड कंसिडरेशन फॉर दिस प्रोडक्ट एंड वी आर यूजिंग इट फॉर अवर सेटिस्फैक्शन, बट वी आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, वी आर नॉट हैप्पी फॉर what we bought this product for। तो you have to listen us, you have to solve a query। तो ये अपना राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब कंप्लेन और उसके लिए मिलना आपको जस्टिस। तो कंज्यूमर का राइट है कि उसको जस्टिस मिले अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहा है तो जस्टिस मिलने के देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। कंज्यूमर कैन गेट अ कॉम्पनसेशन कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल मैम 1000 रुपए का आपने फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लिया था, उसके अंदर आपने बहुत अच्छा लग्जरियस कार था, 25-30 लाख का कार लिया आपने, उसके अंदर आपने देखा कि हाँ एयर बैग्स है, हाँ है ब्रेकिंग ABS है, हाँ है दूसरे सीट बेल्ट्स और एकदम मजबूत है, हाँ एवरीथिंग इज देयर, ब्रेक सबके बराबर है, हाँ है एक्सेलरेशन इज गुड, इंजन इज गुड, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड यू बॉट दैट कार फॉर 30 लाख रुपीस। अभी वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एयर बैग नहीं खुला और आपको सर पे चोट लग गई, उसकी वजह से आपका ऑपरेशन करवाना पड़ा, स्टिचेस लेने पड़े, लाख रुपए 2 लाख रुपए उसके लग गए, उसकी वजह से आप 1 महीना ऑफिस नहीं जा पाए। यू आर गुड बिजनेसमैन, आप महीने का 5-7 लाख रुपए कमाते हो और आपने 1 महीने तक कुछ भी नहीं कमाया बिकॉज ऑफ दिस इंजरी। तो आप कंज्यूमर, आप सेलर के पास जाके बोल सकते हैं, सेलर नहीं सुनेगा तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके बोलो कि ये सब देख के लिया था प्रोडक्ट, यही तो रीजन था प्रोडक्ट लेने का कि लग्जरियस है, सेफ है, लेकिन हमारा सेफ्टी का ध्यान नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गया, पैसा लगा मेरे को ऑपरेशन का, दवाइयों का, ऑफिस नहीं गया मैं तो वो भी सैलरी नहीं मिला, तो वो आपको कॉम्पनसेशन देगा। कैसे कॉम्पनसेशन देगा? आपको गाड़ी तो गई आपकी, तो एक तो यहाँ तो आपको बोलेंगे कि इनको गाड़ी का पूरा पैसा वापस दे दो या इनको नई गाड़ी रिप्लेस करके दो, दो में से एक ऑप्शन आपको वो मिलेगा। इनको ऑपरेशन हुआ तो इन्होंने ऑपरेशन करवाया, उसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट खराब था, तो 2 लाख रुपए आप वो भी दे दो, 50,000 रुपए दवाई का भी दे दो। बोले कोई बात नहीं, ये 1 महीने आपकी वजह से काम पे नहीं जा सके तो उनके 7 लाख रुपए का वो लॉस हो गया, आपको वो भी देना पड़ेगा। तो आपको टोटल 30 + 2.5 + 7.5 या 7 लाख जो भी है आपको 40 लाख रुपीस देना पड़ेगा। तो उन लोगों को आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। मैंने रेडबुल का एग्जाम्पल दिया था, दैट वो बंदा बोला कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स बट आई डिडंट गॉट एनी काइंड ऑफ विंग्स, और मैंने उड़ने की ट्राई की और मैं गिर गया, मेरे को लग गया, मेरे को लाओ पैसे, तो $1 मिलियन का उसको कॉम्पनसेशन मिला। तो वो फिर रिलीफ मतलब राहत देंगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हाँ वही सेम एग्जांपल कार का ही लेते हैं कि एयरबैग वेयरबैग सब था, वही देखा लेकिन खुला नहीं, मतलब एयरबैग खुला लेकिन सही से नहीं खुला। तो हमने जाके कंज्यूमर बोला कि देखो एयरबैग नहीं खुला, तो सेलर ने जाके क्या बोला कि सर ये इंसान बोल रहा है कि एयरबैग नहीं खुला, बट हमारा ऐसा रूल है कि सीट बेल्ट लगाओगे तो ही एयरबैग खुलेगा, वरना एयरबैग सही से नहीं खुलेगा। तो इनकी भी गलती है, या फिर सर ये फोन यूज करते करते गाड़ी चला रहे थे तो इनका भी प्रॉब्लम है, अगर ये फोन नहीं चलाते तो शायद गाड़ी ठुकती ही नहीं। तो इस टाइम पे क्या बोलेगा कि ठीक है इनको रिलीफ दो, एक काम करो, गाड़ी ठुक गई, लग गई, लगा हुआ का वो देख लेंगे, उनका नॉर्म्स है, गाड़ी ठुक गई है, आप उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंसेशनल रेट पे रिपेयर करके दे दो या फिर उनको वारंटी का बेनिफिट दे दो, तो उनको भी फायदा हो जाएगा और आपको भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका भी प्रॉब्लम तो है कि आपका एयरबैग भी सही से खुला नहीं, भले वो फोन पे बात कर रहे थे पर एयरबैग तो खुलना चाहिए ना। तो आप आधा आप सहन करो, आधा वो सहन करेंगे, तो रिलीफ देंगे, मतलब थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। रिप्लेसमेंट होता है लाइक मोबाइल फोन्स में या ऐसे आयंस में होता है कि देखो भाई ये चल रहा ही नहीं, ये गर्म ही नहीं हो रहा इस्त्री, इसको क्या करने का मेरे को, ये गर्म होएगा, और बहुत गर्म होता है तो इतना गर्म होता है कि लगाते ही जल जाता है कपड़ा, तो रिप्लेस करके दो, तो रिप्लेसमेंट मिलता है। कोई चीज ऐसी होती है जो रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए रिपेयरिंग का होता है कि हाँ रिपेयर करके दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल से सर आप प्रोडक्ट चला रहे हो, 1 साल से प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी प्रॉब्लम हो रहा है, तो रिप्लेस क्या करके देने का, रिपेयर करके देंगे आपको, तो रिपेयर करके। तो कुछ भी कोई भी तरीका, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर, डिपेंड्स अपॉन द सेलर, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स अपॉन द कंप्लेन एंड डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज गिविंग यू द रिड्रेसल। सबके ऊपर से डिसाइड होता है कॉम्पनसेशन मिलना, रिलीफ मिलना, रिप्लेसमेंट मिलना, रिपेयर मिलना, कुछ भी, बट कुछ तो आपको मिलेगा अगर आपका राइट हर्ट हुआ है तो आपका हक है कि जस्टिस मिले आपको, राइट टू सीक रिड्रेसल, आपकी कंप्लेन पे जस्टिस मिलना आपका हक है। तो ये वो पॉइंट हो गया। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो कंज्यूमर शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दी राइट्स एंड रिलीव्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो कंज्यूमर को तो ये राइट बोल रहे हो, सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हियर, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये सब राइट्स तो है, बट कंज्यूमर को मालूम होएगा तो वो उसका फायदा लेगा ना। आपको मालूम ही नहीं है कि ISI मार्क का कोई चीज यूज करना पड़ता है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको कोई सुनने के लिए बैठा है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जस्टिस मिल सकता है, तो
How will you take the advantage of that? For example, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला that if you are using a cylinder, गैस सिलेंडर in your home and वो कुक करते टाइम पे फट गया तो 50 लाख रुपीस आपको कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी आपको 50 लाख देगा, आपको मालूम ही नहीं है, बाटला फट गया तो आपने क्या किया, घर में बैठे रहे, अरे आज से तो क्या अभी बंद कर दो, अभी गैस स्टव चाहिए, इंडक्शन कुक टॉप लेके आओ, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था। तो पता लगना भी आपका हक है, मतलब वो कंपनी का हक बनता है कि उसको पता चला कि भाई इनके घर में बॉटल फट गया तो वो आके बोले कि सर आपका राइट है कि आप हमसे 50 लाख रुपीस लो, लेकिन वो बोलेगा नहीं। तो वो हमारा हक है कि हमको एजुकेशन मिलना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमारे क्या हक है। तो वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो कंज्यूमर सेलर खुद बोलेगा। अभी सेलर को हर बार तो एवरी राइट्स वो डिस्क्राइब करेगा नहीं, तो कैसे? तो एटलीस्ट मीडिया इज देयर। तो वो जागो ग्राहक जागो का एडवर्टाइजमेंट आया, हम लोग सारे एड्स देखेंगे इन अपकमिंग लेक्चर कि कैसे क्या होता है, सारे राइट्स के एक वीडियोस है मेरे पास। तो मीडिया है सबसे तड़ाक तरीका, सबसे मजबूत तरीका मीडिया। मीडिया इज देयर हु इज गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स अबाउट योर राइट्स, वो आपको सारे राइट्स दिखाएंगे। इसलिए तो कंज्यूमर फोरम वालों ने वो जागो ग्राहक जागो का एड बनाया है, टीवी पे कास्ट कर रहे हैं कि बीइंग अ कंज्यूमर आपको क्या करना है। हर एक राइट का एक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, वही एडवर्टाइजमेंट हम आगे देखेंगे। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपका हक है कि आपको एजुकेट किया जाए कि आपके हक क्या है, क्योंकि हक मालूम होंगे तो हक लेने जाओगे ना। इफ यू नो योर राइट्स देन यू विल गो टू गेट योर राइट्स। सो दैट्स व्हाई आपका वो कंज्यूमर एजुकेशन का भी आपका एक राइट है। तो ये 6 राइट्स है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। डू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड डू नोट डाउन दिस थिंग्स। ये लिखना है एंड आपको पीडीएफ भेजूंगा मैं वेरी सून। वो पीडीएफ के अंदर ये राइट्स के एक एक पैराग्राफ दिए हैं, यू हैव टू रीड इट फुल एंड उसमें से जितना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको लिखनी है बुक के अंदर। आई एम अगेन टेलिंग यू दैट आपको लिखना है राइट टू सेफ्टी, फिर उसके 5 पॉइंट, राइट टू इन्फॉर्म्ड, उसके 5 पॉइंट, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको उसमें से लिखने पड़ेंगे। आई विल सेंड यू द पीडीएफ। जिसके पास बुक्स है दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम नाउ, बट अभी ये पॉज करके तो लिखना ही है। थैंक यू।